Chapter number 7, Application of Derivative. Review of key notes and formulae. पहले देखेंगे, let the tangent and normal drawn at point P x1 y1 to the curve y equal to fx. Then equation of tangent will be y minus y1 equal to dy by dx at point P x minus x1. Equation of normal y minus y1 equal to minus 1 upon dy by dx एट पॉइंट P x माइनस x1, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम m, और इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन m। तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। आइए अब देखते हैं आगे। नोट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस तो dy बाई डी एक्स विल बी इनफाइनाइट। इफ टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्सिसेस देन dy बाई डी एक्स विल बी प्लस माइनस 1। इफ नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस then dy by dx will be infinite. If normal is parallel to y-axis, then dy by dx equal to 0. If normal is equally inclined from both axes or cut equal intercept, then dy by dx equal to plus minus 1. Length of subtangent, subnormal, tangent and normal. Length of subtangent, important point है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेंथ ऑफ टेंजेंट y रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। लेंथ ऑफ नॉर्मल y रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, आपका स्लोप है। मोनोटोनिसिटी, monotonic function, monotonically increasing function. The value of fx should increase or decrease or remain equal by increasing decreasing the value of x. Let x1 and x2 belong to the domain of the function, then x1 is less than x2, therefore f x1 is less than equal to f x2, or x1 is greater than x2, therefore f x1 is greater than equal to f x2. Monotonically decreasing function, the value of fx should increase or remain equal by increasing decreasing the value of x. x1 is less than x2, f x1 is greater than equal to f x2, or x1 is greater than x2, therefore f x1 is less than equal to f x2. नोट पॉइंट क्या है, x1 is less than x2, then f x1 less than f x2 for every x1 x2 belong to D, then fx is strictly increasing in domain D. If x1 is less than x2, f x1 is greater than f x2 for every x1 x2 belong to D, then fx is strictly decreasing in domain D. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, मोनोटोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज। इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट also strictly increasing decreasing function. If fx is continuous in closed interval ab such that f dash c less than equal to c for each c belong to ab, then fx gx, fx increasing, gx increasing, fgx increasing, gfx increasing, fx increasing, gx decreasing, fgx decreasing, gfx decreasing, fx decreasing, gx decreasing, fgx increasing, gfx increasing. Maxima and minima, local maxima. A function fx is said to have local maxima at point x equal to
x equal to a if there exists a very small positive quantity h such that fx is less than equal to fa for every x belong to a minus h, a plus h. Local minima. A function fx is said to have local minima at point x equal to b if there exists a very small positive quantity h such that fx is greater than equal to fb for every x belong to b minus h comma b plus h. The point x equal to a is called the point of local maxima of the function. Third point, global maxima. A function f has global maxima at c if fc is greater than fx for all x belong to d. Fourth, global minima. A function f has global minima at d if fd is लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी। अब यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखाया गया कि ग्राफ क्या है, देखिए ये ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट है x1, दूसरा है x2। तो x1 में क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। लोकल मैक्सिमा ये वाला पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा है, और नीचे की साइड में क्या है, लोकल मिनिमा है। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा ये है और लोकल मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा ये है। Method of testing maxima minima. First of all, first derivative test. Find the critical point, that means c, x equal to c by putting f dash x equal to 0. If f dash x changes sign from positive to negative at x equal to c, then point is said to be point of local maxima. If f dash x changes sign from negative to positive at x equal to c, then point is said to be point of local minima. Second order derivative. Find f dash x and equal it to 0. F dash x equal to 0. Find the real value of x by putting f dash x equal to 0, c1, c2, c3 and so on. Find f double dash x and substitute the value of c1, c2, c3 in it and get the sign of f double dash x. Step 4. If f double dash c is less than 0, then it has maxima at x equal to c. If f double dash c is greater than 0, then it has local minima at x equal to c. Greatest and least value of function. If function fx is defined in an interval close interval ab, then greatest value of fx equal to maximum fa, fb, fc, least value of fx minimum fa, fb, fc, where x equal to c is a point such that f dash c equal to 0. Tips and tricks. T1. If the curve passes through the origin, then equation of tangent at origin can be directly written by equating to 0 the lowest degree term appearing in the equation of curve. For example, first one is फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड ओरिजिन। आपको ओरिजिन पे क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) इक्वल टू 0। तो यूजिंग ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x कंसिडरिंग एज y इज कांस्टेंट। नहीं, तो इसमें डायरेक्ट इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे पास लीनियर लोअर डिग्री टर्म है, लोअर डिग्री टर्म मतलब ये वाले, इसी को डायरेक्ट आप इक्वल कर दीजिए 0 बस, बाकी और कुछ करना ही नहीं है, डिफ्रेंसिएशन भी नहीं करना है, केवल डायरेक्ट यही 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कर देना है,
इस वाले में केवल ये लोग डिग्री टर्म है, तो इसको इक्वल टू 0 कर देना है बस। टिप्स नंबर सेकंड, if OP and OQ are intercept made by a tangent to the curve x की पावर m plus y की पावर m equal to a की पावर m on the coordinate axis, then OP की पावर n plus OQ की पावर n equal to a की पावर n। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, एग्जांपल सेकंड क्या है, द सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट टू द कर्व x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल टू 2 एट पॉइंट 88 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या निकालने को बोल रहा है, टेंजेंट। तो सबसे पहले क्या किया गया, कर्व x 1/3 y/3, तो अब इसमें OP और OQ इक्वल टू 8, मतलब वही पॉइंट रख दिया है। एक बार रिपीट करते हैं ये, रिपीट क्या कर लें, पहले समझ लें एक बार, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स की पावर m प्लस वाई की पावर n इक्वल टू ए की पावर m है। जो पावर है वहाँ पे ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ओ पी प्लस ओ क्यू इक्वल टू ए की पावर n, मतलब इस टू के पावर में इसको कन्वर्ट करना है n के। n मतलब आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, मतलब ए सेम करना है तो वहाँ पे हमको जिस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यहाँ पे 0.8 है, इस 8 को हमको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 का क्यूब ही होगा। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/3 अगर करेंगे, क्यूब रूट करेंगे तभी इसके इक्वल आएगा। तो इस हिसाब से इसको कर किया है, तो 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 p की पावर 2/3 cuts of the intercept a and b on the coordinate axis, then find the value of a की पावर -5/3 प्लस b की पावर -5/3। शॉर्टकट सोल्यूशन यूज करना है, तो यहाँ पे x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू p की पावर 2/3। अब x के प्लेस पे हमने यूज किया क्या, ए की पावर -5/3, -5/3 क्वेश्चन में गिवन है, तो बी की वैल्यू -5/3, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी -5/3, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, टिप्स नंबर थर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n एट x1 y1 इज x1 पावर n-1 प्लस y1 n-2 इक्वल टू a की पावर n। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 की पावर 2/3 एट पॉइंट x1 y1, पुट n इक्वल टू 2/3 x1 की पावर 2/3 -1 प्लस y1 और पावर 2/3 इंटू 1 इक्वल टू 2 की पावर 2/3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी x/x1 की पावर 1/3 प्लस y/y की 1/3 इक्वल टू 2/3। द टेंजेंट टू द कर्व y x e x square passing through the point 1e also passes through the point 2 3e 4/3e 5/3 2e, ये 3। तो इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर dy/dx ई की पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब यहाँ पे पॉइंट रख देंगे 1e लाइज ऑन द दिस, देयरफॉर टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन 1e इज इतना। टिप्स एंड ट्रिक नंबर 4,
if two curve p1 x square plus q1 y square equal to 1 and p2 x square plus q2 y square equal to 1 cuts ऑर्थोगोनली, जब भी ऑर्थोगोनली वर्ड आ जाए, ऑर्थोगोनली रहे, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके जो कट्स होंगे वो वन अपान करके माइनस करके इक्वल होंगे। ये वन अपान पी वन माइनस वन अपान पी टू इक्वल टू वन अपान क्यू वन इक्वल टू वन अपान क्यू वन माइनस वन अपान क्यू टू। एग्जाम्पल देखेंगे, एक्स स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर अपान एम स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इक्वल टू वन। देन फाइंड द कंडीशन वन अपान पी स्क्वायर माइनस वन अपान क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन अपान एम स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। टिप्स एंड ट्रिक आगे का। Tips and trick number 5. Area of triangle formed by tangent to the any point of the curve 2xy equal to p square with coordinate axis is constant and it is equal to p square. Illustration क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व एक्स वाई इक्वल टू 9 विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी कर्व इज 2xy इक्वल टू 18। एरिया क्या हो जाएगा इसका, 18 स्क्वायर यूनिट। टिप्स एंड ट्रिक नंबर 6, लेट एफ एक्स इक्वल टू पी साइन एक्स प्लस क्यू साइन एक्स अपॉन आर साइन एक्स प्लस यस कॉस एक्स। तो यहाँ से इसका क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। पी क्यू आर एस इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन जीरो है। पी क्यू आर एस लेस देन जीरो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे इसका साइन एक्स पी कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स थ्री कॉस एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया इन द इंटरवल इतना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई 5/3 और 5/3 ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। अगला एग्जांपल है साइन एक्स पी कॉस एक्स टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 1p2 3 लेस देन जीरो, तो 3 माइनस 2p लेस देन जीरो, p इज ग्रेटर देन 3/2। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 7 एक्स की पावर 2/3 एक्स बिलोंग टू आर इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स लाइंग इन माइनस इन्फिनिटी जीरो यूनियन 14/15 इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी जीरो यूनियन 3/7 इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी 14/15 माइनस इन्फिनिटी माइनस 14/15 यूनियन जीरो कॉमा इनफाइनाइट। शॉर्टकट यूज करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 7 एक्स की पावर 2/3 एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x 2/3 प्लस 3x माइनस 7 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3 इक्वल टू 15x माइनस 14/3x 1/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेबी कर्व मेथड से वैल्यू आ जाएगी 14/15 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एक्स बिलोंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 14/15 इन्फिनिटी। इफ एफ एक्स एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स देन एफ एक्स। तो इसमें पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो दो वैल्यू मिल जाएगी, एक -1/2 एक मिल जाएगा 1। तो बेबी कर्व मेथड बनाएंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कर देंगे, -1/2 1, तो ये क्लोज इंटरवल में आ जाएगा क्या, -1/2 कॉमा 1। Tips and tricks number 7. Let fx be polynomial function, then between any two roots of the function fx there exists one root of derivative, that is f dash x. Prove that between the roots of x square minus 3x plus 2 there exists one root of its derivative, x square minus 3x plus 2 equal to 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1, तो 2x-3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2 विच इज बिटवीन 1 2।
discard rule of sign for the roots of the polynomial. रूल नंबर एक, पॉलिनोमियल लिख दिया, इज नंबर चेंजेस ऑफ द साइन ऑफ द कोफिशिएंट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। एग्जांपल जैसे एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे प्लस 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 एक माइनस हो रहा है, तो ओनली वन change of sign, then number of positive roots of above equation is at most 1, मतलब अधिकतम इसका पॉजिटिव रूट कितना होगा, एक होगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार इसने साइन चेंज किया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज द नंबर ऑफ द चेंजेस फॉर फ्रॉम द पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव इन साइन कॉफिशिएंट एफ माइनस एक्स। तो अगर ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन में अगर हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दिया, तो पहली जगह ये साइन चेंज हुआ, फिर ये साइन चेंज, उसके बाद ये, तो इसमें भी एक ही बार साइन चेंज हो रहा है, एक ही बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट मोस्ट वन रहेगा। निगेटिव रूट भी इसका क्या रहेगा, एट मोस्ट वन रहेगा। ट्रिक नंबर 9, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ टाइप, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी प्लस माइनस बी कॉस एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इफ एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर। और एफ एक्स इक्वल टू ए सेक एक्स प्लस बी कोसेक एक्स, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 3/2। तो यहाँ पे एलुस्ट्रेशन आ जाएगा 13, फॉर कर्व आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आर निकालेंगे कैसे, अंडर रूट ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगी। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन एक्स प्लस पाई/4, तो x बिलोंग टू 0 कॉमा पाई/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके बाद, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन रूट 2 प्लस कॉस एक्स रूट 2 इक्वल टू 2√2 अपॉन सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, तो y मैक्सिमम इक्वल टू 2√2 अपॉन सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स मिनिमम, तो y मैक्सिमम इक्वल टू 2√2 अपॉन 1 की पावर 2/3 प्लस 1 की पावर 2/3 3/2, 2√2 2√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस पाई/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ पे √19 √79 अपॉन 2 √34 √31। शॉर्टकट सोल्यूशन, लेट द फंक्शन इज एफ थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा cos पाई/6 माइनस 5 साइन पाई/6 cos थीटा, तो 3 cos थीटा प्लस 5 √3/2 साइन थीटा माइनस 5/2 cos थीटा, तो 3 माइनस 5/2 cos थीटा प्लस 5√3 साइन थीटा इक्वल टू 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा, तो मैक्सिमम एफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/4 प्लस 25/4 मल्टीप्लाई 3, तो कैलकुलेट कर देंगे, ये आ जाएगा 19 रूट में। टिप्स एंड ट्रिक नंबर 10, sum of two natural number is a, then their product is maximum if number are x equal to a upon 2 and y equal to a minus a upon 2. Illustration 16, the sum of two natural number is 20 and their product is maximum, find the number। shortcut solution इसमें ले रहे हैं using trick number 10, here a equal to 20, x equal to a upon 2 equal to 10 and y equal to a minus a upon 2 equal to 10, hence number are x equal to 10 and y equal to 10. The sum of two natural number is 30, then their product is maximum if a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 30 है, नंबर आर 30/2 मतलब 15 एंड y इक्वल टू 13 माइनस 15, तो आंसर 15 आ गया। मैक्सिमम एरिया
हुज पेरीमीटर इज पी इज इक्वल टू पी अपॉन 4 का होल स्क्वायर, रेक्टेंगल का है एरिया। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर 24 इज इक्वल टू, तो इसका सबसे पहले 24 अपॉन 4 किया, आगे कितना 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे पेरीमीटर 36 है तो ये 4 से डिवाइड करेंगे 9, 9 का स्क्वायर 81। टिप्स एंड ट्रिक नंबर 12, लीस्ट पेरीमीटर रेक्टेंगल एरिया, तो ये 4 रूट ए हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया 4 रूट ए हो जाएगा। तो एरिया यहाँ पे 49 है इस क्वेश्चन में, लीस्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एरिया 49 स्क्वायर इज इक्वल टू ए इक्वल टू 49, तो 4 इंटू रूट ए, 49 का हो जाएगा 7, 4 जा 28। लीस्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 81 अपॉन 4, तो इसका रूट लेंगे 9 अपॉन 2 आ जाएगा, 9 अपॉन 2 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 18 मीटर। टिप्स एंड ट्रिक नंबर 13, if the triangle is inscribed in the circle of radius r, then area of inscribed triangle will be maximum if triangle is an equilateral triangle। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैक्सिमम एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला √3/4 आर, आर √3 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर इज इक्वल टू, शॉर्टकट सोल्यूशन है यहाँ पे r इक्वल टू 5, मैक्सिमम एरिया √3/4, 5 √3 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू रख दिया 75 √3/4 m स्क्वायर। टिप्स एंड ट्रिक नंबर 14, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एज फॉलोज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, तब के केस में तब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और यही रिवर्स हो जाएगा किस में, अगर वो a की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, मतलब ये 1 से बड़ी है, तो a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे 1 1 1 है, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, एक्चुअल में यहाँ पे 4ac पहले करना है, तो 4ac मतलब 4 माइनस ac का मतलब -1 अपॉन 4, ये आ जाएगा 3/4 जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ये पहला टर्म हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगला क्या है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो इसमें -2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है a की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, ये वाली वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, तो मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 17/18 आ जाएगा, हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से हमको लेना है, तो ये √15/2 और √19/2, √15/2 ये है, तो शॉर्टकट सोल्यूशन लेंगे d इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस 16 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की पावर 4 माइनस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 16, डी स्क्वायर इक्वल टू डी अल्फा इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 14 अल्फा इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 7/2, डी स्क्वायर इक्वल टू 49/4 माइनस 49 प्लस 2 इक्वल टू 16 माइनस 49/4 प्लस 16 इक्वल टू 15/4, डी की वैल्यू √15/2, शॉर्टकट लेंगे इसका, तो टू फाइंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स और जी एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स, दैट इज टू एस्टेब्लिश इनइक्वलिटीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए एम इज ग्रेटर देन जी एम कैन बी यूज्ड स्प्लिट the function such that on multiplication gm is becomes unity. Prove that 2 sin x plus tan x is greater than equal to 3x. x belong to 0, pi by 2.
तो शॉर्टकट लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस थ्री एक्स, डिफ्रेंसिएशन कर दिया टू कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स स्प्लिट कर दिए माइनस थ्री। तो ए एम इज ग्रेटर देन जी एम होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस सेक कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश एक्स से जीरो से बड़ी आ गई। हेंस टू साइन एक्स प्लस टू टेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एक्स। In order to find condition for root of the cubic polynomial fx equal to ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, if fx is non-monotonic function then follow the step। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको सबसे पहले एफ डैश एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसके दो रूट ले लेंगे एक्स वन एक्स टू। ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट हैव टू रियल रूट्स, डी इज ग्रेटर देन जीरो, लेट द रूट बी एक्स वन एंड एक्स टू। तो एफ एक्स वन dot fx2 is greater than 0, one real and two imaginary root, fx1 fx2 equal to 0 equal to थ्री रियल कोइंसिडेंट रूट आ जाएगा, और एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू इज लेस देन जीरो देन थ्री रियल डिस्टिंक्ट रूट आएगा। एग्जाम्पल नंबर 27, इफ द क्यूबिक y cube plus px plus q has थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट, देन इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इसका। तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट माइनस पी अपान थ्री, वाई इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू जीरो, फोर पी क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। शॉर्टकट यूज करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैन बी फाइंड बाय यूजिंग ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। स्प्लिट कर देंगे तो जी एम बिकम्स यूनिटी, पी स्क्वायर एक्स की पावर फोर प्लस क्यू स्क्वायर वाई की पावर फोर इक्वल टू सी की पावर सिक्स, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो पी स्क्वायर एक्स की पावर फोर प्लस क्यू स्क्वायर वाई की पावर फोर अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स की पावर फोर क्यू स्क्वायर वाई की पावर फोर वन बाई टू। तो ये सी की पावर सिक्स अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू एक्स स्क्वायर वाई की पावर टू हो जाएगा। एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब अपॉन टू पी क्यू, एक्स वाई इक्वल टू सी की पावर फोर। मिनिमम वैल्यू आपको पी एक्स प्लस क्यू एक्स निकालना है, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम पी एक्स प्लस क्यू वाई अपॉन टू, पी क्यू एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू। एक्स वाई की वैल्यू क्या है फोर है, तो इसके प्लेस पे हम फोर रख देंगे, तो आ गया आपका एक्स वाई की सी की पावर फोर। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू सी स्क्वायर, और ये एक्स वाई ही रह गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, इफ p and q are positive real number then p square plus q square equal to 1, then the maximum value of p plus q is, let p equal to sin theta plus q equal to cos theta, p plus q equal to sin theta plus cos theta। तो p plus q maximum equal to root 2, let c1 c2 be two curve having equation fx and y equal to gx respectively, then angle between intersection of tangent c1 and c2, then tan theta equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर, y इक्वल टू साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर इक्वल टू वन अपान रूट टू, वाई इक्वल टू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे माइनस वन अपान टू आ जाएगा। तो टेन थीटा एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम वन इंटू एम टू, वन अपान रूट टू
प्लस 1/√2, 1/1√2 माइनस 1/√2 कैलकुलेट कर देंगे तो 2√2 आ जाएगा आंसर। अब कॉन्सेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये तो एट ओरिजिन से निकालना है। ये सारी क्वेश्चन देख लेते पहले, फिर उसके बाद सोल्यूशन देख लेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पुटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो, क्या कर लेंगे हम, देख लेंगे इसका आंसर आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू अगर जीरो इक्वल कर देंगे तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन था आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन पे जब भी आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमको एक्स वाई को जीरो कर देना है। इस क्वेश्चन में क्या कर देना है, एक्स वाई जीरो कर देंगे तो हमारा टेंजेंट आ जाएगा, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो हमारा हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। सेकंड, यूजिंग कर्व इतना, तो इसमें √16 है, तो 16 को उस रूट में बना देंगे 256 हो जाएगा। पुटिंग एन इक्वल टू 2, x1 ये 6√2, पी की वैल्यू 3/2, एरिया p² यूजिंग 1b2 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो b की लेस देन 3/2 बाई डिस्कर्ड रूल, x² + 9 + 6x + x² + 25 + 10x - 16 इक्वल टू जीरो। नो साइन चेंज या टू साइन चेंज है, दो रियल रूट है। आर इक्वल मैक्सिमम C/A + B² आर इक्वल टू मैक्सिमम कर देंगे तो C/A + B, नंबर आर 10/2, 10 - 10/2, AM इज ग्रेटर देन GM कॉन्सेप्ट से इसको कंप्लीट किया गया है। धन्यवाद।